Hello students, welcome to my YouTube channel Eminent Galaxy. In this video, we are going to discuss the chapter number 3 of quantum mechanics, and this video is for MSc first year students, and the book which I am following is from Indira Gandhi National Open University. So if you have this book, please open this book for your convenience along with this video. So let us start the chapter number 3. In this chapter, we already discussed the uh, first and second topic of which are related to Schrödinger wave equation, wave function, and now we are going to start the topic number 3.3.2. Okay, so let us start, which is the this topic is probability current density and continuity equation. In this topic, we will study what is the probability current density, and we will derive the equation which is most important equation, that is continuity equation. So to understand what is the probability current density, we will start with the continuity equation which we discussed in our lower classes, which is related to the flow of fluid flowing through a pipe. For example, consider fluid is going through this pipe, and this is the point, suppose x1, and this is the point, suppose x2. These are the 2 points, x1 and x2, and as here we can see that rho is the symbol which we used to denote the mass per unit length of the fluid around the point x. कोई भी point है x, वहां से जो फ्लूइड है पर यूनिट लेंथ में कितना फ्लूइड है उसको डिनोट करने के लिए हमने रो सिंबल यूज किया है. ओके, रो इज द mass. We can denote mass with the, suppose, small amount of mass dm flowing through a length, mass per unit length. Suppose a length of this length between these 2 points is suppose dx. Suppose this distance is, this length is dx. Suppose length of the pipe is dx. Then this is the mass per unit length. Mass per unit length is the symbol rho. And velocity of the fluid changes with the distance x. x distance के साथ velocity change हो रही है. जो fluid इसमें से pass कर रहा है, जैसे जैसे distance चेंज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से जो पाइप है हमारी वो थोड़ी नैरो है, थोड़ी सी, तो यहाँ पे जो फ्लूइड का की वेलोसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम है, तो यहाँ से फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. सो वी कैन से दैट द वेलोसिटी है जो एक्स का फंक्शन है, वेलोसिटी एक्स के साथ डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है. Okay, so what is x, s? S is the v into vx into rho x. So v into rho, v is velocity and rho is the mass per unit length. Okay, so now if we will substitute the value of velocity, what will we get? Velocity is distance upon time. Distance is suppose dx and time is dt, and rho is mass per unit length. So from here we get that s is, what is s? S is the mass per unit time. Okay, so v into rho,
V into rho is mass per unit time, means एक सेकंड में, यूनिट टाइम में, वी कैन से दैट एक सेकंड में कितना मास यहाँ से पास कर रहा है. S is the mass per unit time. Suppose Sx1. Here we can see what is Sx1. Sx1 is the mass of the fluid crossing in unit time. Means एक सेकंड में कितना मास यहाँ से एंटर कर रहा है. ओके, यूनिट टाइम में यहाँ से कितना मास एंटर कर रहा है, फ्लूइड का कितना मास एंटर किया. और Sx2 क्या है, मास पर यूनिट टाइम एट पॉइंट x2. ओके, dm by dt we can denote it by dm, स्मॉल मास एंटरिंग इन स्मॉल टाइम. तो स्मॉल टाइम में यहाँ से कितना लीव कर रहा है, x2 पॉइंट पे कितना मास यहाँ से लीव कर रहा है. तो ये हो गया मास पर यूनिट टाइम. और यहाँ पे देखें अगर हम, नेट मास ऑफ द फ्लूइड अकोमुलेटेड इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना मास यहाँ से लेके यहाँ तक अकोमुलेट हुआ, इकट्ठा हुआ, यहाँ पे जो फ्लूइड है वो कितना यहाँ पे इकट्ठा हो गया. तो यहाँ इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एस यहाँ से जितना एंटर किया x1 पॉइंट पे जितना एंटर किया माइनस जितना x2 पॉइंट पे लीव किया. तो ये हो गया मास पर यूनिट टाइम एंटरिंग द पॉइंट x2 x1 माइनस मास लीविंग एट पॉइंट x2. ओके, सो ये आ गया हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं. और अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो ये क्या है, रो इंटू डी एक्स. वट इज रो, रो इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ. तो ये आ गया dm बाई डी एक्स इंटू डी एक्स. अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें x1 से लेके x2 पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मास एंटर किया यूनिट लेंथ में, तो इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा हमारे पास. dm की अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, dx के साथ dx कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल मास. टोटल मास है जो, उसको अगर हम कर्ल बाय कर्ल टी, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो गया, मास पर यूनिट टाइम, मास ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टाइम. तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, राइट साइड है जो इसके इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग, अगर हमारा फ्लूइड है वो कंजर्व रहे इस रीजन में, इस रीजन में अगर मास हमारा कंजर्व रहे तो उसके लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है विद टाइम वो कितना होना चाहिए, जितना एंटर कर रहा है माइनस जितना लीव कर रहा है. तो ये तो होगी हमारी जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी है कंटिन्यूटी इक्वेशन. ओके, तो इसको हम इसी के साथ हमारी एनोलॉजी है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की. अब पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, सबसे पहले व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, जिसको हम पी के साथ डिनोट करते हैं. ये साई स्टार साई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसका मतलब क्या है कि जो हमारी वेव है, वेव मोशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वेव फंक्शन होता है जो, वेव फंक्शन साई क्या डिनोट करता है कि किसी पार्टिकल की किसी पार्टिकल को ये डिनोट करता है, इसके पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट्स को ये डिस्क्राइब करता है. और p क्या है, प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एनी रीजन, किसी पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी. और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है हमारे पास, j, जिसको हम j के साथ डिनोट करते हैं. probability current density is a rate of change of probability.
रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टाइम के साथ विद टाइम टाइम के साथ हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज होती है। ओके, यहाँ पे पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है, कुछ टाइम बाद इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कुछ और हो सकती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी विद टाइम, इसको हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जो टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी है, सपोज dx डिस्टेंस में, dx डिस्टेंस में जितनी हमारी प्रोबेबिलिटी है x1 से लेके x2 तक बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इसकी हम टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमारी आ जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी विद टाइम। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, jx2 माइनस jx1। तो इसी के एनालॉगस ही है ये इक्वेशन, यहाँ से हमने चेंज कर दिया प्रोबेबिलिटी और करंट डेंसिटी की फॉर्म में इसको लिख दिया। तो ये वाली इक्वेशन अब हमने इसको डिराइव करना है। ये वाली इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन से। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी हमारी, आयोटा एच कट कर्ल साई बाई कर्ल टी माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m कर्ल स्क्वायर साई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस बी साई। तो इसका हम पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। आयोटा का आ जाएगा माइनस आयोटा, साई का आ जाएगा साई स्टार, और ये बाकी इक्वेशन सेम ही रहेगी, बस जहाँ पे साई है वहां पे साई स्टार आ जाएगा। ओके, तो ये आ गई हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब हम क्या करेंगे, इसको साई स्टार के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको साई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को। ओके, तो दोनों को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करके हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ना हमारे पास ये आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ गई। यहाँ पे जो ये साई स्टार साई है, ये तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में। और ये वाला जो फंक्शन है, ये वाली टर्म है जो, इसको हमने जे के साथ डिनोट कर दिया, जे एक्स टी। यहाँ से हमने इसको डिफाइन किया, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है यहाँ से आया, इसको हमने डिफाइन कर दिया कि हमने इसको जे एक्स टी के साथ लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास jx1t माइनस jx2t, क्योंकि x2 पे जो वैल्यू है इसकी वो आ जाएगी jx1t, और माइनस अगर हम लिमिट्स पुट करेंगे माइनस, फिर इसकी x1 पे वैल्यू पुट करेंगे, x1 पे जो ये वैल्यू आएगी वो आ जाएगी jx1t। ओके, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारी इक्वेशन, ये वाली आ गई जो हमने डिराइव करनी थी। Here is, first of all we will write it like this, p dx x1 से x2 तक इज इक्वल टू की जगह यहाँ पे हम जो j2 है इस साइड को ले जाएंगे, प्लस j2 jx2 t माइनस jx1 t equal to 0। And now we will differentiate this equation with respect to x। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, d बाई डी एक्स पी डी एक्स इंटीग्रेशन, प्लस इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर दें, d बाई डी एक्स जे एक्स टू माइनस जे एक्स वन equal to 0। So now here we can see that as we know that derivative is inverse of integration. So these will cancel out each other and we will get p, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो हमारे पास सेम ही रह जाएगा p। ओके, तो कर्ल बाय कर्ल t आ गया इसके साथ, प्लस यहाँ से क्या आ गया, चेंज इन, दिस इज द चेंज इन
करंट डेंसिटी जे कर्ल जे आ गया, this is the change J, and this is the curl X, and this becomes the equation of continuity. If we want to write it in the three coordinates, as we have written this equation only in the x-axis, so for three coordinates we will get it here like curl J by curl X, curl J by curl Y, curl J by curl Z. So that will become J by X plus J by Y, J by Z. That will become del J. Okay, del dot J. Del dot J curl P by curl P by curl T plus equal to 0. So this is the equation of continuity. You just need to remember this formula. J h cut by 2m iota psi star curl psi by curl X minus psi curl psi star by curl X. This is an important formula for numerical questions, and this is the continuity equation. So now we have the SAQ 3, in which we have given the wave function. We have to calculate the probability density and probability current density. So we already know what is probability density. Pxt is equal to psi star psi. Okay, psi star is the complex conjugate of wave function. Psi is already given. And what is psi star? Psi star will be equal to e raised to power minus alpha minus iota beta x e raised to power iota omega t. And what is psi? Psi is e raised to power minus alpha plus iota beta into e raised to power minus iota omega t. So from here ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और यहाँ पे x आएगा साथ में, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास e raised to power माइनस अल्फा माइनस iota बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस iota बीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x e रेज टू पावर, ये आल्टा बीटा माइनस का और प्लस का ये कैंसिल हो गई, और ये आ गया -2 अल्फा एक्स e रेज टू पावर -2 अल्फा एक्स. ओके, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी. इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले कर्ल साई बाय कर्ल एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डेरिवेटिव ले लेना है. ओके, तो उसके बाद हम इसका साई स्टार जो आया था हमारा साई स्टार, इसमें हम हमारे पास आ जाएगा ई रेस्ट पर माइनस अल्फा माइनस ऑयटा बीटा एक्स और ई रेस्ट पर ऑयटा ओमेगा टी. इसके हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी डेरिवेटिव कर देंगे, और ये वैल्यू दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके साई स्टार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे साई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर लेंगे. तो आई थिंक यू कैन डू इट यूर सेल्फ. ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, डेरिवेटिव ही लेना है. और उसके बाद है हमारा नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन. व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? इसमें हमने सिंपल क्या करना है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसकी इंटीग्रेशन करनी है और इसको 1 के साथ इक्वेट करना है. नॉर्मलाइज्ड फंक्शन क्या होता है? जिसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, मींस प्रोबेबिलिटी, ये हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1. नॉर्मलाइज्ड फंक्शन क्या होता है, क्योंकि व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी? टोटल प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 होती है, तो इसीलिए हम इसको 1 के साथ इक्वेट कर देंगे. साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज example number 3.3.
ओके, एक चीज़ और है जो हमें इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हमारे लिए, वो है कि जब नॉर्मलाइज करना है हमने किसी वेव फंक्शन को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी फंक्शन हमें दिया होगा, अगर सपोज कोई भी फंक्शन की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी होगी, तो उसको हमने जब नॉर्मलाइज करना है तो क्या करेंगे हम, पहले इसके साथ कोई भी कांस्टेंट लगा लेंगे। साई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ साई डैश इज इक्वल टू ए साई, कोई भी कांस्टेंट लगा लिया साई साई के साथ। तो उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, ए स्टार साई स्टार। फिर हम दोनों की जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो लगा लेंगे, साई स्टार साई, साई स्टार यानी साई डैश स्टार, ये हमारा हो जाएगा साई डैश स्टार। ओके, साई डैश स्टार और साई स्टार, ये इसको हम वन के साथ इक्वेट कर देंगे, और यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी ए साई, ए स्टार साई स्टार और ए साई, यहाँ से ए स्क्वेयर आ जाएगा और साई स्टार साई हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। यहाँ से ए की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ए को, ए क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं ए, तो इसकी हम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कोई भी हमें अगर फंक्शन दिया होगा साई, तो उसको हमने कांस्टेंट के साथ, सी कांस्टेंट भी ले सकते हो आप, सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेनी है। इंटीग्रेशन करके इसकी हमने इसको वन के साथ इक्वेट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एक क्वांटम में, जो भी हमारे ये वाले क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें हमने पहले फंक्शन को, वेव फंक्शन अगर दिया होगा ना, तो हमने सबसे पहले उसको नॉर्मलाइज करना होता है। जैसे ये एग्जाम्पल है 3.3 एग्जाम्पल है, इसमें हमें ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगा के दिया हुआ है कि ये हमारा फंक्शन है। इसमें ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगाया हुआ है, तो इसको हमने सिंपल, इसका पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, एन, एन स्टार, एन एक्चुअली कांस्टेंट है तो एन स्टार और एन दोनों सेम ही रहते हैं, एन स्टार इज इक्वल टू एन, तो इसको आप चाहे एन भी लिख सकते हो, एन एक्स, उसके बाद क्या है एक्स ए माइनस एक्स ई रेज टू पावर, यहाँ पे क्योंकि माइनस ऑल्टा है तो यहाँ पे प्लस ऑल्टा ई टी बाई एच कट आ जाएगा, ये हमारा साई स्टार आ गया। एंड व्हाट इज साई, साई इज एन एक्स ए माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस ऑल्टा ई टी बाई एच कट, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एन स्क्वेयर आ गया, साई स्टार साई क्या आ गया, एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ए माइनस एक्स स्क्वेयर ई रेस्ट पर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे और इसको वन के साथ इक्वेट करेंगे, एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, एन स्क्वेयर तो कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन से, एन स्क्वेयर ए माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वन, और लिमिट्स क्या है, 0 टू ए, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, जो हो रही है 0 से लेके ए तक, और यहाँ पे dx भी आएगा साथ में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसकी हमने अब इंटीग्रेशन कर लेनी है, इसको ब्रैकेट्स को ओपन करके इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट कर लेनी है 0 से ए। उसके बाद हम यहाँ से n की जो आंसर लास्ट में n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बहुत सिंपल रहते हैं न्यूमेरिकल।